السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں رمیز احمد اور میں ہوں آپ کے ساتھ شہربانو آبان۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ آپ کو بتائیں کراچی کے علاقے گلستان جوہر کے نجی اسپتال میں غلط انجیکشن لگنے سے 9 ماہ کی نشوہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ جو باپ چاہتا تھا اس کی بیٹی اسے صحیح حالت میں واپس نہ مل سکی۔ نشوہ اور عائشہ کی جوڑی نہ رہی۔ بچی کے والد کیسر اپنی بچی کی موت کے حوالے سے بتاتے ہوئے زاروں قطار روتے رہے۔ گلستان جوہر کے نجی اسپتال میں غلط انجیکشن لگنے سے مفلوج ہونے والی 9 ماہ کی نشوہ زندگی کی بازی ہار گئی۔ میری بیٹی نے بہت ہمت کی لیکن میری بیٹی ہار گئی ہے۔ پلیز مل کے کچھ کھڑے ہو اور تاکہ کسی اور کی بیٹی نہ جائے یار۔ 6 اپریل کو قیصر نامی شہری 9 ماہ کی جڑواں بیٹیوں کو نجی اسپتال لایا تھا۔ بچیوں کو پیٹ میں درد کی شکایت تھی، مگر 7 اپریل کی صبح جب بچیوں کو ڈسچارج کرنا تھا تب مجرمانہ غفلت و لاپرواہی دکھائی گئی۔ نشوہ کو غلط انجیکشن لگا دیا گیا جس سے بچی مفلوج ہو گئی اور وینٹیلیٹر پر چلی گئی۔ 15 اپریل کو نشوہ کو اسٹیڈیم روڈ کے نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ بچی کے دماغ کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ بچی کا دماغ بہت بری طرح سے متاثر ہوا تھا اور بچی جو تھی اسے جسے انگریزی میں کہتے ہیں ویجیٹیٹیو سٹیٹ، اس میں تھی، بالکل مفلوج حالت میں تھی۔ ڈاکٹرز نے 1 ہفتہ سر توڑ کوشش کی۔ 16 دن والدین نے شدید کرب و اذیت میں گزارے۔ ماں کے ہاتھوں پر دکھوں کا سب سے بڑا بوجھ آ گیا۔ یہ دکھ والدین کو زندگی بھر ستائے گا۔ بچی کی لاش گھر پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ قیصر علی کی 4 بیٹیاں ہیں، نشوہ اور آویش جڑواں، جبکہ آروش اور امیشہ نشوہ کی بڑی بہنیں ہیں، مگر اب آویش کی جوڑی دار دنیا سے رخصت ہو گئی ہے۔ ننھی پری نشوہ کے گھر اس کے رشتہ داروں کی آمد جاری ہے۔ اہل خانہ کا غم بانٹنے کے لیے کوئی سیاسی شخصیت تاحال نہ پہنچ سکی۔ اس وقت سونیا شہزاد ہماری نمائندہ نشوہ کے گھر پر موجود ہے، جبکہ قبرستان میں انتظامات کے حوالے سے اپڈیٹس حاصل کریں گے اپنے نمائندے سعود بن مرتضیٰ سے۔ سب سے پہلے رخ کریں گے سونیا کی جانب جو اس وقت گھر پر موجود ہیں۔ سونیا، یقیناً آپ گھر پر موجود ہیں، فضا سوگوار ہوگی، ہر آنکھ اشکبار ہوگی، کیا ماحول دیکھ رہی ہیں؟ کوئی آیا کیا ان والدین کا غم بانٹنے کے لیے؟ بالکل شہربانو، اس وقت میں نشوہ کی رہائش گاہ پر موجود ہوں۔ اہل والدین کے علاوہ عزیز و اقارب بھی ہیں جو کہ اس وقت شدت غم سے نڈھال ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ نجی اسپتال کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جانی چاہیے۔ حیرت انگیز اس بات میں آپ کو بتاؤں کہ تمام تر سیاسی شخصیات کی جانب سے میسیجز تو بھیجے گئے نشوہ کے لیے، اظہار افسوس تو کیا گیا، لیکن اب تک کسی بھی بڑی سیاسی شخصیت نے نشوہ کے گھر کا رخ نہیں کیا۔ یہاں پر اہل خانہ کی ہی بڑی تعداد موجود ہے، عزیز و اقارب موجود ہے جو کہ اس وقت نشوہ کے لیے کافی زیادہ افسردہ ہیں۔ نشوہ کی جو نماز جنازہ ہے وہ عصر کی نماز کے بعد ادا کی جائے گی اور پہلوان کوٹ میں جو ہے وہ نشوہ کو تدفین کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے سونیا، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ جیسا کہ آپ ہمیں بتا بھی رہی ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سیاسی شخصیات کی جانب سے بیانات خوب آئے، لیکن اب تک معصوم نشوہ کے گھر کوئی نہیں پہنچ سکا ہے۔ سعود بن مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعود، نماز جنازہ اور تدفین کے کیا معاملات ہوں گے، کیا بتانے اہل خانہ کا؟ جی بالکل رمیز، ننھی نشوہ کی نماز جنازہ جو ہے عصر کے بعد گلستان جوہر میں اوورسیز بنگلوز میں جامع مسجد ابن عباس میں ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد وہاں سے میت کو پہلوان گوٹ قبرستان میں لایا جائے گا۔ ہم لوگ اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور کیمرہ مین راشد عشرت اگر آپ کو دکھائیں کہ اہل خانہ یہاں پر جو اس کی آخری آرام گاہ ہے، قبر ہے، اس کو فائنلائز کرانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ اس کی قبر مکمل کروا لی گئی ہے، بنوا لی گئی ہے، بس ننھی نشوہ کی قبر جو گورکن ہے وہ بنا رہا ہے، اسی کے انتظامات دیکھنے کے لیے جو ہے اہل خانہ یہاں پر آئے ہیں۔ ان کو 3 بجے بلایا گیا تھا تاکہ وہ دیکھ سکیں، اور اس کے بعد اب یہاں سے یہ واپس جائیں گے، اور عصر میں سے تھوڑی دیر پہلے میت کو جو ہے گھر سے مسجد منتقل کیا جائے گا، اور وہاں سے نماز جنازہ کے بعد یہاں پر لا کر تدفین کی جائے گی۔ اہل خانہ کافی غم سے نڈھال بھی ہیں، ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ پولیس اس کے حوالے سے بھی کہنا ہے کہ تحقیقات کر رہے ہیں، قتل کے اس واقعے میں جو ہے 322 کی دفعہ کو بھی شامل کیا جائے گا تاکہ اس کی تفتیش کو مزید آگے بڑھایا جا سکے، اور اس واقعے میں جو بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ ملوث عناصر ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا جو اب تک گرفتار نہیں ہوئے۔ جی ٹھیک ہے، نماز عصر کے بعد یہاں پر تدفین کی جائے گی اور اس حوالے سے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ سونیا شہزاد اور سعود بن مرتضیٰ، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ گلستان جوہر کے نجی اسپتال میں نشوہ کو غلط انجیکشن لگا دیا گیا۔ انجیکشن کس نے لگایا؟ اسپتال انتظامیہ نے اعتراف تو کیا، مگر ملازمین ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالتے رہے۔ نشوہ کے کیس میں اب قتل باسبب کی دفعہ بھی شامل کر دی گئی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
9 माह की निशवा ना बच सकी। आखिर निशवा के साथ हुआ क्या था? इंजेक्शन लगाने की जिम्मेदारी मिडवाइफ सोबिया को दी हुई थी, मगर असिस्टेंट आगा मुईज को थमा दिया गया, जिसका काम इंजेक्शन लगाना नहीं था। एंड उस दिन उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस जिम्मेदारी को इंतजाम देती। आगा मुईज ने पहले तो एतराफ किया कि इंजेक्शन उसने लगाया, मगर अदालत में अपने बयान से मुनहरिफ हो गया था। 700 रुपये की तरफ से ही लगा, 700 रुपये ही कर रही थी मेडिसिन, तो वही कर रहा हूँ। तो आपको क्यों गिरफ्तार किया गया? डॉक्टर्स को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? बस टेंशन थोड़ा घबरा गया, प्रेशर आया। अस्पताल इंतजामिया ने गलती का एतराफ तो किया, मगर गिरफ्तार मुल्जिमान एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। जो इंजेक्शन हाथ पर लगाना था वो ड्रिप में, और जो ड्रिप में लगाना था वो इंजेक्शन हाथ में लगा दिया गया। मिडवाइफ सोबिया ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और जिम्मेदारी आगा मुईज पर डाल दी। मैंने तो ये बोला कि चलो काम जल्दी निपट जाएगा, मैंने इसको बना के दिए मेडिसिन के, ये लगा दो। फ्लैजल ये खुद बना के लेके गया था, जो दूसरा इंजेक्शन ड्रिप में डालना था वो मैं इसको बना के दे के आई हूँ बेड साइड पे कि ये ड्रिप में डाल दो। गिरफ्तार मुलाजमीन एक दूसरे को जिम्मेदार करार देते रहे, मगर तफ्तीशी अफसर ने बड़ा इंकशाफ कर डाला। उन्होंने बताया आगा मुईज बेड पर से चादरें बदलने का काम करता था, दोनों का काम इंजेक्शन लगाना नहीं था। वाइफ है जिसको हम लोग आम अल्फाज में कहते हैं दाई, सोबिया, जो हमने अरेस्ट की हुई है, और एक दूसरा लड़का है जो कि वो भी है अपना मुईज, आगा मुईज, तो उसका भी काम नहीं, इसका भी काम यही है बेड की शीट वगैरह चेंज करना, ये करना वो करना। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक शाराए फैसल थाने में दर्ज एफआईआर में कत्ल बाद सबब की दिफा 322 पीपीसी शामिल कर ली गई है। तफ्तीशी अफसर का कहना है कि वाक़ये में मुलव्विस तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि अस्पताल को सील करने का फैसला महकमा सेहत सिंध और हेल्थ कमीशन ने करना है। कराची सिटी कोर्ट में निशवा केस की समाअत। गिरफ्तार मुल्जिमान अदालत में पेश। वकील मुद्दई ने खदशा जाहिर किया कि 2 रोज पहले अस्पताल में लगने वाली आग में सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड जला दिया गया। प्रोसिक्यूटर की जानिब से ऐसा मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पुलिस की गफलत है, इस मामले पे सख्त दफात नहीं लगाई गई। साथ ही साथ वकील मुद्दई ये भी कहते हैं कि 2 रोज कबल गुलिस्तान जौहर के अस्पताल में आग लगी थी और खदशा ये भी है कि सीसीटीवी रिकॉर्ड इससे जला दिया गया। जाए वकुआ सीसीटीवी कैमरों का रिकॉर्ड महफूज बनाया जाए, ऐसी इस्तदा भी उनकी जानिब से की गई है। गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया जाए। लेडी डॉक्टर को शख्सी जमानत पर रिहा कर दिया गया, ऐसा मौक़िफ़ भी आपको बताएं कि वकील मुद्दई की जानिब से अदालत के रूबरू अपनाया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने निशवा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया। कहा बच्ची के वालिदैन के साथ इंसाफ होगा। गवर्नर सिंध ने निजी अस्पताल के डॉक्टर्स को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं सिंध के अवाम आखिर कहां जाकर अपना इलाज करवाएं। वजीर आला सिंध का निशवा की मौत पर दुख का इजहार। कहा नन्ही परी के वालिदैन के दुख को समझता हूँ। मासूम बच्ची के वालिदैन को इंसाफ की यकीन दहानी करा दी, लेकिन मेरी बेटी हार गई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल समा से गुफ्तगू में बोले सेहत के शोबे में ऐसी लापरवाही नाकाबिले कबूल है। डॉक्टर्स हैं वो इसके बिल्कुल जिम्मेदार हैं 100%। जो अस्पताल चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट के, उसके अंदर जो ये नेग्लिजेंस होती है क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। सिंध को कोई कानून साजी ऐसी करनी पड़ेगी कि जिसके ऊपर ये इसकी सख्ती से निपटा जाए। सिंध असेंबली में अपोजिशन रहनुमा नुसरत सहर अब्बासी कहती हैं सिंध के अवाम आखिर इलाज के लिए कहाँ जाएं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हमारी नन्ही नन्ही मासूम कलियां इस तरह उनके साथ सलूक किया जाए और वो ऐसे हाथों में दम तोड़ दें, मुझे बताएं फिर कहाँ जाएं? नन्ही निशवा तो तिब्बी अमले की लापरवाही से जिंदगी की बाजी हार गई। इंसाफ तो तब होगा जब जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। अब जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा ईरान का। ईरानी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का कहना था कि ईरान का दौरा करने का मकसद दूरियों और गलत फहमियों को कम करना है। महसूस किया दहशतगर्दी का मसला दोनों ममालिक में तफरीक पैदा कर रहा है। हसन रूहानी बोले दहशतगर्दी से लड़ने के लिए जॉइंट रैपिड रिएक्शन फोर्स बनाएंगे। पाक ईरान ताल्लुकात में कोई दरार नहीं डाल सकता। वजीर आज़म इमरान खान ने दुनिया को 2 टोक बता दिया। ईरानी सदर के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले हम भी इंक़िलाब लाना चाहते हैं जिसका नाम नया पाकिस्तान होगा। 3 or 4 days back we have 14 of our security personnel were killed by terrorists in Balochistan. The issue of terrorism was going to become a divisive part, was going to increase differences between our countries. It was very important for me to come here and come with our security chief that we
resolve this issue. ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा, दहशत गर्दों ने सरहदों पर चंद हमले जरूर किए, मगर दोनों मुल्कों में अच्छे ताल्लुकात के लिए पुरअज़्म हैं। We also came to an agreement to boost security cooperation. Our border guards, a joint rapid reaction force, will be operating on the borders of the two countries to fight terrorism. Well, there are two major, Chabahar and Gwadar. We could connect the two ports by creating a railway network. इससे पहले पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताउन के एलामिये पर दस्तखत किए गए। वजीर आज़म ईरानी सरमायाकारों और ताजरों के अलावा सुप्रीम लीडर अली खामनाई से भी मुलाकात करेंगे। हजरत फातिमा मासूमा के मज़ार पर हाजिरी के बाद वजीर आज़म आज रात मशहद एयरपोर्ट से पाकिस्तान वापस रवाना हो जाएंगे। अहम अदालती कार्रवाई से मुतालिक आपको बताएं कि सियासतदानों में रकूम की तकसीम का मामला सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी तहकीकाती इदारे की जानिब से असगर खान अमल दरामद केस बंद करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। FIA की सिफारिश पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। असगर खान अमल दरामद केस वफाकी तहकीकाती इदारे ने फिर हाथ खड़े कर दिए। FIA की जानिब से केस बंद करने की इस्तदा पर सुप्रीम कोर्ट का शदीद इजहार बरहमी। जस्टिस अजमत सईद ने रिमार्क्स में कहा, हर मुल्जिम अपने जुर्म से इनकार करता है। क्या ऐसी सूरत में केस दाखिल दफ्तर हो जाता है? क्या कत्ल का मुकदमा मुल्जिम के इनकार पर बंद हो जाता है? इस्तफसार किया, क्या हामिद सईद से पूछा गया रकम कैसे अदा की? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जिन पर रकम लेने का इल्जाम है वो जुर्म मानने से इनकारी हैं। यह भी तस्लीम किया कि हामिद सईद से अदायगी का तरीकाकार नहीं पूछा गया। वजारत दिफा ने भी अपनी पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मजीद गवाहान तलाश करके तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के अज़्म का इजहार भी किया। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, ऐसा लगता है FIA ने कुछ किया ही नहीं। वफाकी तहकीकाती इदारा केस में पूरी जान लड़ाए। अदालत ने FIA को ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद का बयान दोबारा रिकॉर्ड करने का हुक्म देते हुए 1 माह में पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। सखर की सेशन अदालत ने जाली अकाउंट केस में नोडेरो से गिरफ्तार नदीम भुट्टो को 5 रोज़ा राहदारी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नदीम भुट्टो को सखर एहतसाब अदालत में पेशी के लिए लाया गया था, जहां जज की अदम मौजूदगी पर इसे सेशन कोर्ट में पेश किया गया। नैब की दरख्वास्त पर सेशन जज ने मुल्जिम की इस्लामाबाद मुंतकिली के लिए 5 रोज़ा राहदारी रिमांड दे दिया। नैब के मुताबिक मुल्जिम को आज बजरिया कौमी एयरलाइन इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाएगा। मुल्जिम नदीम भुट्टो को गुज़िश्ता रोज़ नैब सखर ने नोडेरो हाउस लाड़काना से हिरासत में लिया था। अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में सजा मौतली का केस। नवाज शरीफ ने कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील। तिबी बुनियादों पर जमानत पर रिहा साबिक वज़ीर आज़म ने एक और दरख्वास्त दायर कर दी। मियां साहब ने 1 दिन के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। अदालत आलिया में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत मंगल को होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। सजा याफ्ता मुजरम की जानिब से दायर इस्तिस्ना की दरख्वास्त के साथ मेडिकल रिपोर्ट भी मुंसलिक। रिपोर्ट में बताया गया है कि मियां साहब दिल के मरीज हैं। शुगर लेवल को मॉनिटर किया जा रहा है। गुर्दों की बीमारी भी 3रे दर्जे पर है। मेडिकल बोर्ड ने ज़हनी दबाव से बाहर आने के लिए मुकम्मल आराम की हिदायत की है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक तमाम माहिरीन अभी हतमी रिपोर्ट मुरतब करेंगे। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर वकलाए सफाई की जानिब से बहस न करने और पेपर बुक न मिलने पर सख्त बरहमी का इजहार किया था। लाहौर से खबर देंगे आपको, जहां नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के बाद शरीफ मेडिकल सिटी से रवाना हो गए हैं। मोहम्मद अली जड़ हमारे साथ मौजूद हैं। अली जड़, बताइएगा डॉक्टर्स ने क्या कहा है टेस्ट रिपोर्ट्स के हवाले से? देखिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज तकरीबन कुछ 7वीं मरतबा शरीफ मेडिकल सिटी में आए थे, जहां उनका तिब्बी मुआयना किया माहिरीन की एक टीम में, जिसमें गुर्दे, दिल और दिमाग के जो माहिर डॉक्टर्स थे वो शरीक थे। उन्होंने जो साहब का रिपोर्ट थी उनका भी जायजा लिया और जो अब तक उन्हें मेडिसिन इस्तेमाल कराई जा रही है उस हवाले से भी जायजा लिया गया था। हम इस हवाले से जो उनके ज़ाती मामले थे, आज उन्होंने कोई मीडिया से टॉक नहीं की। इस हवाले से जब रब्ता किया गया तो उनका यही कहना था कि उन जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात है मुस्लिम लीग नून की, वो मीडिया को आगाह करेंगे इस हवाले से कि आया उनके जो ऑपरेशन होना था, खासतौर पे जो दिमाग को जो वेन जाती है उनमें जो बंदिश है उसका, और इसके साथ साथ जो एंजियोग्राफी का मामला है उस हवाले से कोई फैसला हुआ है कि नहीं, इस हवाले से अभी वो सही तमाम मुआयने किए गए हैं। नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के बाद शरीफ मेडिकल सिटी से रवाना हो गए। बहुत शुक्रिया अली जड़, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर का कहना है कि वर्ल्ड कप में सख्त टीमों से मुकाबला होगा, खिलाड़ियों को अच्छा खेल पेश करना होगा, टीम टॉप 4 में आने की सलाहियत रखती है। I think there's 10 very good cricket teams, and I think that's what makes this World Cup
so special is that you have to arrive every day. You have to put your best on for 10 games, and initial phase is to qualify and get into those top 4, and then hopefully take it from there. We know that if we play to our best of our ability, we have the potential to certainly go all the way. But as I said before, there's a lot of very, very good cricket teams out there, and we're going to have to play very well. कराची के मोहम्मद राशिद ने मजीद 4 भारतीय रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को भिजवाए जाएंगे। कराची के मोहम्मद राशिद का मजीद भारतीय रिकॉर्ड्स तोड़ने का दावा। राशिद ने 3 मिनट में 1920 मुक्के बरसा दिए। 1 किलो वजन उठाकर 1640 मुक्के बरसाने का रिकॉर्ड भी बनाया। बगैर रुके 398 मरतबा लाठियां बरसाने, सर से 1 मिनट में 125 पेंसिल तोड़ने का अमरीकी रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। राशिद ने लाठी को 96 मरतबा घुमाकर भी रिकॉर्ड बनाया। तमाम रिकॉर्ड्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इंतजामिया को भिजवा दिए गए। तस्लीम कर लिए गए तो राशिद के मजमूई रिकॉर्ड्स 41 हो जाएंगे। हाथों से महरूम फैसलाबाद के 23 साल आर्टिस्ट आयशा के कैनवस पर महारत बेमिसाल, मुंह और कंधे का सहारा लेकर ऐसे फन पारे तख्लीक करती है कि देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह पाते हैं। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। हाथों से कैनवस पर रंग बिखेरना तो मुश्किल बात नहीं, मगर मुंह से इस फन का मुजाहरा करना नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन फैसलाबाद की आयशा ने ये कर दिखाया है। चलिए आपको भी उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आयशा, ठीक हो? मेरे जैसे इंसान के लिए पेंसिल पकड़कर सीधी लाइन लगाना भी बहुत मुश्किल है। ये मेरा पैशन है, मेरा शौक था, इसलिए मैं हर तरह की पेंटिंग कर लेती हूँ। मेरा नाम आयशा खान है और मैं फैसलाबाद की रहायशी हूँ। मैं डिसेबल पर्सन टोटली, किसी से सीखा नहीं है ना, बाय गॉड है। मैं खुद ही लगी रहती थी, कभी कहीं बैठ के कभी कहीं बैठ के पेंसिल स्केच बनाती रहती थी। घर में सेल्फ एजुकेशन किया मैंने, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने इमरान खान साहब का स्केच बनाया है और मैं चाहती हूँ कि मैं खुद उनको गिफ्ट करूँ। वो इंस्पिरेशन है मेरी। पेंटिंग बहुत महंगा शौक है, मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो मेरे इस महंगे शौक को सपोर्ट करे। यहाँ आपको बताएं कि निशवा हलाकत केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने मुल्जिमान अहमद शहजाद, आगा मुइज और आतिफ को 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इरफान उल हक से। इरफान, हमें बताइएगा मुल्जिमा सोबिया के हवाले से कोई हुक्म दिया गया? देखिए, सोबिया को तो अदालत ने जेल भेजने का हुक्म दिया है और तफ्तीशी अफसर को इजाजत दी है कि वो जब चाहे सोबिया से जाकर जेल हुकाम की मौजूदगी में तफ्तीश कर सकता है। और अगर पुलिस को सोबिया की कस्टडी जरूरी चाहिए हो थाने में या कहीं और उसे विजिट कराना हो, इस हवाले से एक दरख्वास्त अदालत को दी जाएगी तो अदालत उसकी इजाजत दे देगी। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 3 मुल्जिमान की मजीद गिरफ्तारी अमल में आई है, जिनमें आतिफ और अहमद शहजाद और सोबिया शामिल हैं। इसलिए तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए मुल्जिमान का रिमांड दिया जाए और मुद्दई मुकदमा के जो वकला थे उनका भी ये इसरार था कि मजीद रिमांड दिया जाए ताकि सही तौर पर तफ्तीश हो सके कि आखिर गलती किसकी थी और कौन सी मेडिसिन गलत लगाई गई। ताहम मुल्जिमा सोबिया का ये कहना है कि इंजेक्शन आगा मुइज ने लगाया है, जबकि आगा मुइज जो पहले से गिरफ्तार मुल्जिम है उसने अपना बयान तब्दील किया है। उसका अब ये कहना है कि सोबिया जिम्मेदार थी मेडिसिन देने की। अदालत ने 3 रोज का रिमांड मंजूर किया है और हिदायत की है कि आइंदा रिमांड पर जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी अदालत में पेश की जाए। बहुत शुक्रिया आपका इरफान उल हक। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। के लिए सिविल और सिक्योरिटी इदारों की कोशिश से कामयाब कराची दुनिया में जराइम के हवाले से 6 से 70वें नंबर पर आ गया। ISPR के मुताबिक 2014 में कराची वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स में 6 नंबर पर था। आज शहर में क्राइम इंडेक्स वाज़ेह तौर पर कम हुआ है, 70वें नंबर पर कराची अब आ चुका है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ वफूर ने ट्विटर पैगाम में लिखा, कराची में सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बेहतर है। इसका तमाम क्रेडिट सिविल इदारों, सिंध रेंजर्स, सिक्योरिटी इदारों और इंतजामिया को जाता है। कराची में अमन के क़याम के लिए शहरियों का भी बड़ा किरदार है।
पेशावर में पोलियो वायरस के खात्मे के लिए नई हिकमत अमली के तहत 6 रोजा मुहिम का आगाज, जिसमें पहली बार 10 साल तक की उम्र के बच्चों को इंसदाद पोलियो वैक्सीन पिलाई जाएगी। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट। पेशावर में पोलियो वायरस पर कारी ज़रब लगाने के लिए ज़िली इंतजामिया मुतहर्रक। जिला भर में इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू हो गई। मुहिम में 10 साल की उम्र तक के 8 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। हम डोर टू डोर जाएंगे, वो घरों में बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स देंगे, वो भी पैदाइश से लेकर 10 साल तक बच्चों को कतरे पिलाएंगे। पोलियो मुहिम के दौरान मुख्तलिफ स्कूलों की इंतजामिया और वालदैन की बच्चों को पोलियो कतरे पिलाने की यकीन दहानी। हम इनके साथ पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं और यानी वालिदैन को भी समझा रहे हैं और जो है ना इनके साथ भी पूरा ताउन कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि ये जो है ना ये वायरस जल्दी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए 27,000 टीमें तश्कील। मुहिम के दौरान 34,000 सिक्योरिटी एहलकार फराइज अंजाम देंगे। कैमरामैन ज़काउल्ला के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। थरवासी पानी की तलाश में दर बदर रुल रहे हैं। सिंध हुकूमत के लगाए गए आरओ प्लांट से शहरियों को मीठा पानी नहीं मिल रहा। छाछरों के प्यास से मकीन एहतजाज पर मजबूर है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। भूख के बाद प्यास भी सताने लगी। थर पार करके लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए। सूखे कुएं और बंद आरओ प्लांट्स हुकूमती नाअहली की दास्तान सुनाने लगे। आरओ प्लांट बंद पड़ा है, 7 साल से हो चुके हैं। हमारी तनख्वाह भी बंद है। गांव वाले सारे रेडियां कर रहे हैं। कंपनी से मैंने मशवरा कर लिया और डीसी साहब के दरख्वास्तें दिए, कोई सुनने वाला है ही नहीं। छाछरों के प्यासे मकीन एहतजाज पर मजबूर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। ये इसी कंडीशन में है, पानी यहाँ नहीं मिल रहा है और पानी पीने का बिल्कुल खराब पानी है। इधर जो कुएं में पानी है वो बिल्कुल खराब है। अवाम का कहना है काले सोने की इस सरजमीन के लिए हुकूमत ने फौरी कोई इकदाम ना किए तो कहत से तबाही बढ़ने का खदशा है। साथी रिपोर्टर रफीक रहमान के साथ अब्दुल जब्बार, समा, थरपारकर। पाकिस्तान ने जज्बा खैर से गाली के तहत मजीद 100 भारतीय कैदी रिहा कर दिए। पाकिस्तान 3 मरहलों में 300 भारतीय माहीगीरों को रिहा कर चुका है। लाहौर से तरह असगर की रिपोर्ट। कैद से रिहाई मिलने की खुशी है और घर वापस जाने की है बेताबी। भारतीय माहीगीरों को कराची से ट्रेन के जरिए लाहौर पहुंचाया गया। रेलवे स्टेशन से वाघा बॉर्डर तक जाने के लिए बसों का एहतमाम था। भारतीय माहीगीर जेल में पाकिस्तानी हुक्काम के सलूक की तारीफ करते रहे। पाकिस्तान में अच्छा खाना बना मिलता था, गवर्नमेंट भी अच्छा था, उसका कोई ट्रबल नहीं। बहुत खुशी हो रही है। इंडिया में घर से बीबी बच्चे के साथ मिलूंगा तो भी बहुत खुशी होगी। माहीगीरों ने भारतीय हुकूमत से भी पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा किया। अभी घर पे जा रहे हैं, हम बहुत खुश भी है और हमारी हुकूमत को ये कह रहे हैं उधर बंदे है उसको भी छोड़ा जाए। पाकिस्तान आइंदा हफ्ते मजीद 55 भारतीय माहीगीरों को रिहा करेगा। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ तरह बसकर, समा, लाहौर। कम बैक पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के रुकन नोमान भट्ट ने अपने खिलाफ इंक्वायरी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, डिफरेंसेस अब कानूनी जंग की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। जी नोमान भट्ट हैं, उन्होंने अपने खिलाफ जो इंक्वायरी थी उसको चैलेंज कर दिया है, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के पीसीबी के चेयरमैन है एहसान मानी, उनको नोटिस जारी कर दिए हैं और 7 मई जो है वो अगली तारीख दी गई है पीसीबी के लिए जिसमें वो अपना जवाब दाखिल करेंगे। जो नुमान भट्ट हैं उनका ये कहना है कि उनके खिलाफ जो इंक्वायरी की जा रही है वो क्रिकेट बोर्ड का जो आइन है वो उसकी इजाजत नहीं देता। जी अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया शाहिद। आपको बताएं, पाकिस्तानी सकाफत का हर रंग हसीन, हर अदा दिलरुबा। दूर दराज इलाकों से आए हुनरमंदों ने इस्लामाबाद में दस्तकारी मेला सजा लिया। देसी पहनावों की नुमाइश में सकाफती मौसीकी के सुर भी गूंजते रहे। इस्लामाबाद से अरहम खान की रिपोर्ट। चरखे पर सूत काटती सिंध की सारा बीबी। खैबर पख्तूनख्वा के पहनावों का स्टॉल सजाए बैठी फरासत और कश्मीरी सकाफत की अमीन यास्मीन। ये बाहिम्मत खवातीन अपने दस्ते हुनर से मुल्की सकाफत का झंडा बुलंद किए हुए हैं। पंजाब, बलूचिस्तान, हुंजा और चित्राल से आए सकाफती रंग भी नुमाइश में आने वालों को खूब भाए। वादी हुंजा के कल्चर का मुझे नहीं पता, यहाँ देखा मैंने तो मुझे अच्छा लगा। पाकिस्तान का कल्चर काफी रिच है, यहाँ पर सब बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। दस्तकार खवातीन कहती हैं बुजुर्गों से विरसे में मिली सकाफत को अगली नस्ल में मुंतकिल करना दरअसल वतन से मोहब्बत ही तो है।
हमारी बड़े जमाने की माँ दादी बनाती थी, हम उनसे सीखे। कदीमी हुनर है जिसको हम हमारे नस्ल ने भी पसंद कर ले। लोक फनकारों के सुरीले तड़के ने तो मेले के रंगों को और भी निखार दिया। यहाँ मौजूद हर हुनरमंद अपनी सकाफत का नुमाइंदा है, जिसके फन में उसकी मट्टी की खुशबू बोलती है। कैमरामैन अवैस काजी के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद।